Good morning, students. Myself, Lakshmi Narwani, once again represent you with the second part of our 14th lesson, the India location, geological structure and physiography part second. In the previous video of this lesson, we talk about the physiography of India and its two parts. And we talk about that the physiography of India is divided into 5 sections: northern mountainous regions, great northern plains, peninsular plateau, the coastal plain and archipelago. And from these 5 points we discussed on 2 points, northern mountainous regions and second जो कि great northern plains. Now in this part, the second part of our video, we discussed about the peninsular plateau, in this Malwa plateau, Deccan plateau, the coastal plain of India and the archipelago. So before start for head, I want to suggest you that you keep your textbook and a notebook with you, because if any important points telling by me, then you can write in your notebook and it's okay. So now let's start. Okay, third point, peninsular plateau. So this is the oldest region of India, and this region appears as an inverted triangle. Inverted means opposite triangle. Its average height is about 600 to 900 meters from sea level. Okay, its northern part slope towards northeast, which is evident from the flow of Chambal, Son and Damodar rivers. Its northern part slope is evident or is true that the river Chambal, Son and Damodar rivers are flowing in the from northern directions, and the southern part slope towards southeast. So most of its area is in south, and hence it is called southern plateau, because the most of area of its southern plateau is located in southern India. So its plateau is known as the southern plateau, as it is surrounded by sea or its 3 sides. So it is called peninsular plateau, and with this our जो southern plateau is surrounded by 3 sides with waters, and we know that the any land part which is surrounded by 3 sides water is known as the peninsula. So India's southern part is surrounded by sea is on its 3 sides, so it is known as the southern plateau. Southern plateau can be divided into 2 parts. Now it also can be divided into 2 parts, first Malwa plateau and second Deccan plateau. So first Malwa plateau, Aravalli range is situated to the northwest part. Aravalli range is situated to the northwest part of Malwa plateau. Aravalli is one of the oldest range in the world. Please underline this sentence. It will be asked in exams. ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है. It is a folded mountains. यह एक folded mountain है. Mount Abu is the famous hill station on this range, and Malwa plateau में जो famous hill station है वह Mount Abu है. It is very beautiful and pleasant. Guru Shikhar is the highest peak and it is 1722 meters high. Do underline also it. To the south of this region, इसके साउथ में the river Chambal and Betwa emerging from विंध्याचल. विंध्याचल माउंटेन रेंज से इसके साउथ में चंबल और बेतवा रिवर्स इमर्ज होती है. इमर्ज मीन्स निकलती है. फ्लो नॉर्थवार्ड्स, जो कि नॉर्थ की तरफ बहती है, एंड मीट रिवर यमुना, और यमुना नदी में मिलती है. वाइल रिवर सोन फ्लो नॉर्थवार्ड्स है, जबकि रिवर सोन जो कि नॉर्थ में बहती है, एंड मीट्स रिवर गंगा
और वह गंगा रिवर में मिलती है। सो इट कैन बी नोन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिवर्स। इन नदियों के बहने की दिशा के आधार पे हम कह सकते हैं कि फ्रॉम दैट द रीजन स्लोप नॉर्थवार्ड्स है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस रीजन का जो स्लोप है, जो ढलान है, वह नॉर्थ की तरफ है। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस सेंट्रल अपलैंड इज़ नोन एज द बुंदेलखंड। एंड जो मालवा प्लेट्यूज का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, इस अपलैंड मीन्स जो प्लेट्यू पार्ट का जो सेंट्रल अपलैंड पार्ट है, उससे हम बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। बिसाइड दिस रिवर लूनी एंड बनास आल्सो ओरिजिनेट इन द अरावली रेंज इन नॉर्थ ईस्ट। इसी के अलावा जो रिवर लूनी एंड बनास, ये दोनों भी अरावली रेंज से नॉर्थ ईस्टर्न से इमर्जिन होती हैं। दीज रिवर्स वैनिश इन द रन ऑफ कच्छ। वैनिश मीन्स एज ए गायब हो जाना या फिर डिसअपियर हो जाना। सो ये जो दोनों ही रिवर्स हैं, लूनी रिवर्स हैं, जो कच्छ का जो रन है या रन ऑफ कच्छ है, उसके अंदर डिसअपियर हो जाती है या फिर अंडरग्राउंड हो जाती है। वाल साबरमती एंड माही रिवर मीट द गल्फ ऑफ खंबात, जबकि साबरमती और माही रिवर्स खंबात की खाड़ी के अंदर मिलती है। फ्रॉम द फ्लो ऑफ दीज रिवर्स, अच्छा, इनके बहने की दिशा के आधार पर इट कैन बी ascertained that the western part of मालवा प्लेटू स्लोप टुवर्ड्स साउथ वेस्ट, कि मालवा प्लेटू का जो वेस्टर्न पार्ट है उसका स्लोप भी साउथ वेस्ट की तरफ है। राजमहल हिल्स एंड शिलोंग प्लेटू आर ए पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू विच ऑल्सो इंक्लूड रांची प्लेटू। विद दिस राजमहल हिल्स एंड शिलोंग प्लेटू आर ए पार्ट ऑफ छोटा नागपुर, ये छोटा नागपुर के पार्ट हैं जो कि इंक्लूडेड रानी प्लेटू, जो कि रांची प्लेटू के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट प्लेटू डेक्कन प्लेटू। द डेक्कन प्लेटू इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ सतपुड़ा, महादेव एंड मेघालय रेंज विच आर लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द मालवा प्लेटू। हमने इसकी थर्ड रेंज में पढ़ी थी, जो हमारा थर्ड जो कि शिवालिक रेंज था हिमालय की, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि महादेव, मेघालय, ये सारे जो माउंटेन्स रेंज हैं वो इसके साउथ में लोकेटेड है। एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेटू आर कंपेयर्ड ऑफ लावा डिपोजिट्स। और यह जो प्लेटू बना हुआ है, डेक्कन प्लेटू, यह लावा डिपोजिट से बना हुआ है। ऑन द वेस्टर्न साइड इट्स बॉर्डर इज डिमार्केटेड बाय वेस्टर्न घाट। इसके वेस्ट साइड में इसकी जो बॉर्डर हैं वह वेस्टर्न घाट से डिमार्केट होती है। विच रन्स नॉर्थ साउथ अलोंग द अरेबियन सी कोस्ट, जो कि आगे बढ़ती हुई अरेबियन सी तक जाती है। इट हैज़ सेवरल लोकल नेम्स। इससे अलग अलग क्षेत्रों में, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से, लोकल नेम से जाना जाता है। इट इज़ नोन सह्याद्री इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। प्लीज़ अंडरलाइन दीज टू लाइन्स, कि इन दो लाइनों को आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि इट्स डेक्कन प्लेटू को महाराष्ट्र एंड कर्नाटका के अंदर सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। एंड एज नीलगिरी इन तमिलनाडु के अंदर नीलगिरी के नाम से, एज अन्नामलाई एंड कार्डामम रेंज अलोंग द बॉर्डर ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। एंड द साउथर्न पोर्शन ऑफ वेस्टर्न घाट इज़ मोर लॉफ्टी। इस वेस्टर्न घाट का जो साउथर्न पार्ट है वह ज़्यादा ऊंचा है। जनरली द एवरेज हाइट ऑफ डेक्कन प्लेटू रेंज बिटवीन 900 to 2000 मीटर्स है। वैसे जनरली अगर हम इस डेक्कन प्लेटू की हाइट देखें तो 900 to 1000 मीटर्स तक है। बट एज ए फ्यू प्लेस इट एक्सीड दैट हाइट, फ्यू आइसोलेटेड हिल्स हैविंग मोर देन 900 मीटर्स ऑफ हाइट फ्रॉम द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ दिस प्लेटू। लेकिन कुछ ही ऐसी पहाड़ियाँ इसमें हैं जिनकी की हाइट 900 मीटर या उससे भी ज़्यादा हाई है। दिस इज़ कॉल्ड ईस्टर्न घाट, उसे हम ईस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं। इट हैज़ ए जनरल स्लोप टुवार्ड्स साउथ ईस्ट विच इज़ एविडेंट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर्स एक्सेप्ट रिवर्स नर्मदा एंड तापी विच फ्लो वेस्टवर्ड। मोस्ट ऑफ द रिवर ऑफ डेक्कन प्लेटू फ्लो ईस्टवर्ड एंड मीट द बे ऑफ बंगाल। यानी इसमें यह इस बात का प्रमाण है कि सिर्फ रिवर नर्मदा और तापी ये दोनों ही पश्चिम की तरफ बहती हैं। रिवर्स है वेस्ट, जो हमारा वेस्टर्न घाट है उससे पश्चिम की तरफ बहती है। बाकी जितनी भी रिवर्स यहाँ से निकलती हैं वह सभी पूर्व की तरफ बहती हुई बे ऑफ बंगाल के अंदर मिलती है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट
द कोस्टल प्लेन मतलब कि जो समुद्र तटीय मैदान, हमने हमारे साउथर्न पार्ट में देखा कि बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशियंस हैं। इनके आसपास जो एरियाज़ हैं, जो कोस्टल प्लेन हैं, हम उसे कोस्टल प्लेन या फिर अलोंग द सी कोस्ट प्लेन्स के नाम से भी जाना जाता है। सो पेनिनसुलर प्लेटू इज सराउंडेड बाय ए नैरो बेल्ट ऑफ प्लेन्स फ्रॉम कच्छ टू ओडिशा, की जो पेनिनसुलर प्लेटू हैं यह सराउंडेड किया गया है, यह घेरा गया है एक नैरो बेल्ट से जो कि कच्छ से ओडिशा तक। इट इज़ डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न प्लेन्स हैं, जिससे कि हम वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के नाम से जानते हैं। द वेस्ट कोस्ट प्लेन इज स्प्रेड फ्रॉम गुजरात टू केरला। आप वैसे राजस्थान के नीचे आपको केरला दिखाई दे जाता है, जो जिसमें कि कच्छ से हमारी जो एज ए सी कोस्ट स्टार्ट हो जाती है। तो इसका जो वेस्टर्न कोस्ट है वह गुजरात से केरला तक फैला हुआ है, एक्सेप्ट इन गुजरात, सिर्फ गुजरात में छोड़ करके द प्लेन इज मोस्टली नैरो, सिर्फ गुजरात के अंदर, क्योंकि कच्छ एज ए एक्सटेंडेड एरिया है, इसलिए गुजरात को छोड़ करके बाकी सारे भाग में इसका एरिया जो है एक वह नैरो बेल्ट के रूप में है। इट इज़ वेरी मच एंडुलेटिंग एंड इज नोन एज मालाबार कोस्ट। एंडुलेट का मतलब कि ऊपर नीचे, यानी कि यहाँ पे कई जगह पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, कोई पर्वत शिखर भी हैं, ऐसा नहीं कि सभी जगह पे एकदम प्लेन रूप में है, कहीं पे माउंटेनियस भी हैं इसमें, कहीं पे कोई प्लेट्यू हैं, कहीं पे वैलीज हैं, एंडुलेट हैं, लहरदार एरिया हैं ये, एंड इज़ नोन एज मालाबार कोस्ट टू द साउथ ऑफ गोवा। और इसे गोवा के साउथ में जो एरिया आता है उसे मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है। वेस्ट कोस्ट रिवर हैव डेवलप्ड ट्री एट देयर इंश्योरीज मीन्स कि जहाँ से इनका उद्गम होता है वहाँ पे एज ए वेस्ट कोस्ट रिवर्स, इनमें से जो रिवर्स भी निकलती हैं, मोस्ट ऑफ दीज क्रीक्स हैं आर सबमर्ज्ड वैली अंडर रिवर वाटर्स हैं, इनमें से ज़्यादातर जो कि क्रेक्स हैं वह उन नदियों के नीचे ही सबमर्ज्ड हो गए हैं। दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू द इमरजेंस ऑफ सी शोर, जो कि सी शोर वहाँ से स्टार्ट होता है, इसीलिए वहाँ से ये सी शोर के जो हालांकि शुरू होता है उस चीज़ को ये दर्शाते हैं। इट्स प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन ऑफ फॉर फिशरिंग, क्योंकि यहाँ पे नदियों का पानी इन में जाकर के मिलता है, जो नदियों का अंतिम भाग होता है इंश्योरीज जहाँ जो कि समुद्र में जाकर के अपना पानी डालती है, तो वहाँ पे दो तरह के पानी का संगम होता है, इसलिए जो इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसी बनती है कि वहाँ पे फिशेज सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए ये फिशरीज के लिए सबसे फेवरेबल कंडीशंस होती है। देयर आर मेनी नेचुरल पोर्ट्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, यहाँ पे कई सारे नेचुरल पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, विच इंक्लूड्स मुंबई एंड मार्मागो, जिनमें कि हम मुंबई और मार्मागांव के पोर्ट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। बैक वाटर हैव डेवलप्ड अलोंग द साउथर्न कोस्ट ऑफ केरला, इसके अलावा बैक वाटर्स जो कि साउथर्न कोस्ट ऑफ केरला पे वैसे डेवलप्ड हैं, एंड दीज आर नोन एज कायल इन लोकल वाटर्स हैं। अच्छा, कायल किससे कहते हैं कि जब समुद्र के अंदर जब लहरें आती हैं, लहरें जब तट पे आती है और फिर से वह पानी जब समुद्र में जाता है तो छोटे छोटे जो खड्डे बने हुए होते हैं जो कि डेप्थ होते हैं, उनमें जब पानी भर जाता है उन समुद्र की लहरों का पानी समुद्र के अंदर जाते समय, तो उससे हम कायल के नाम से जानते हैं। ईस्ट कोस्ट प्लेन इज मच ब्रॉडर देन द वेस्ट कोस्ट प्लेन्स हैं, यहाँ पे ईस्ट कोस्ट का जो प्लेन्स हैं वह ज़्यादा ब्रॉडर हैं वेस्ट कोस्ट से। देयर इज सब्सटेंशियल एलुवियल डिपोजिशंस इन द डेल्टा ऑफ कावेरी, कृष्णा, गोदावरी एंड महानदी, यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो कि एलुवियल डिपोजिशंस होता है कावेरी कृष्णा रिवर्स का, गोदावरी रिवर्स का। इन नॉर्थन कोस्ट इज नोन एज द नॉर्थ सरकार कोस्ट एंड द तमिलनाडु कोस्ट इज नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट। ओके, सो यहाँ पे कोस्टल प्लेन का जो नॉर्थन एरिया है जो कि नॉर्थन कोस्ट है उसे हम नॉर्थ सरकार कोस्ट के नाम से, और तमिलनाडु के बाजू में जो कोस्ट हैं उसे हम कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम ले रहे हैं आर्कपेलागो। देयर आर फ्यू आर्कपेलागो इन इंडिया। आपने जब इंडिया के मैप के अंदर अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को अगर केयरफुली देखते हैं तो उसमें कुछ छोटे छोटे द्वीप समूह, कुछ आइलैंड्स हमारे को दिखाई देते हैं। इन्हीं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम आर्कपेलागो कहते हैं। व्हाट इज आर्कपेलागो? The group of island is known as the archipelago. So there are few archipelago in India
अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आर मेजर आर्कपेलागो अमोंग देम सेम। इनमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ये मेजर आर्कपेलागो हैं हमारे इंडियाज़ के। देयर आर मैनी स्मॉलर आइलैंड्स इन लक्षद्वीप एंड दीज आर लोकेटेड एट सम डिस्टेंस ऑफ केरला कोस्ट। लक्षद्वीप के अंदर तो कई सारे छोटे छोटे जो कि आइलैंड्स लोकेटेड हैं, जो कि केरला से कुछ ही दूरी पे लोकेटेड हैं। दीज आइलैंड हैव ए हॉर्स शू शेप, सच कोरल आइलैंड आर कॉल्ड एटॉल्स। इन आइलैंड्स का शेप कैसा है, हॉर्स के शू के शेप में, यानी घोड़े की जो नाल होती है उसके शेप में है। आपने सभी ने देखा होगा कि घोड़े के पैरों में एक लोहे की नाल बंधी हुई होती है, इससे जब वो चलता है तो उससे आवाज़ आती है, उसी शेप में उसे हॉर्स शू शेप कहा जाता है और उसकी शेप में है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल। अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो कि बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। हियर द नंबर्स ऑफ आइलैंड इज ऑल्सो मोर एंड 3 आर सिचुएटेड वेरी फार फ्रॉम इंडियन कोस्ट। यानी कि यहाँ पे कई सारे आइलैंड्स हैं, लेकिन इनमें से 3 जो कि हैं इंडियन कोस्ट से काफ़ी दूरी पे स्थित हैं। देयर आर फ्यू माउंटेन रेंज, इनमें कुछ माउंटेन रेंज भी हैं। सम ऑफ विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू द वॉल्केनिक एक्टिविटी, जहाँ की जो माउंटेन्स वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण बने हैं। दीज आइलैंड्स आर स्प्रेड ओवर 350 किलोमीटर एंड हैव ए स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस फॉर आवर कंट्री इंडिया। इनका हमारे यानी कि भारत के लिए सामरिक महत्व है, क्योंकि जब भी अगर कोई शिप इंडिया से निकलता है या अगर किसी फॉरेन कंट्री से जाता है तो उसे काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। ये कोई लैंड रूट या रेलवे रूट नहीं होता है कि वहाँ पे उसको बीच बीच में प्लेटफॉर्म वगैरह मिल जाते हैं या रुकने के लिए स्टेशन मिल जाते हैं, काफ़ी लंबा रूट तय करना पड़ता है। तो ये जो आइलैंड्स हैं हमारे, ये उनको एक बीच में प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ की हम अच्छा खासा बिजनेस करते हैं, इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस के हैं। एंड थस देयर इज ए डाइवर्सिटी इन द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इस तरह से हमने देखा कि हमने जो 5 फिजिकल रीजन्स पढ़े हमारे इंडिया के, उनके द्वारा हमारे इंडिया के अंदर कई तरह की फिजिकल फीचर्स में डाइवर्सिटी पाई जाती है। एवरी रीजन हैज इट्स ओन डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड येट ऑल रीजन आर इंटरकनेक्टेड। इनमें हर एक रीजन की अलग अलग विशेषता हमने पढ़ी और ये सारे ही रीजन आपस में कनेक्टेड हैं। ऑल ऑफ देम हैव इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन एंड आर यूजफुल इन द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ये सारे ही रीजन हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में काफ़ी योगदान देते हैं। नॉर्थन फर्टाइल प्लेन आर ऑल्सो कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन्स। प्लीज़ अंडरलाइन दिस सेंटेंस। फिर से कह रहा हूँ कि जो भी मैंने अंडरलाइन करने के लिए बोले हैं उनको आप अंडरलाइन कर दीजिए। कि वैसे नॉर्थन प्लेन को उत्तरी में जो उपजाऊ मैदान है उससे अन्न का भंडार गृह के नाम से भी जाना जाता है, स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन्स। साउथर्न प्लेटू इज रिच इन मैनी मिनरल रिसोर्सेज। जो साउथर्न प्लेटू है वह कई सारे रिसोर्सेज में धनी है। विच हैज एनहांस द नेशनल प्रोग्रेस। ये मिनरल्स भी हमारे देश की प्रगति में योगदान देते हैं। मैनी रिवर विद लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर ओरिजिनेट इन द नॉर्थन माउंटेनियस रीजन विच इज़ ऑल्सो नोन फॉर द वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। अच्छा, इसी तरह से जो फॉरेस्ट से आने वाली जो कई सारी रिवर्स हैं वो भी हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होती है, क्योंकि इनमें कई सारे रिसोर्सेज हमारे को मिलते हैं। सो लाइक टू नो हम पढ़ लेते हैं और इसे आप अंडरलाइन भी कर देना। द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया इज बैरन आइलैंड इन अंडमान निकोबार आर्कपेलागो। ओनली जो इंडिया के अंदर, वैसे एक्टिव एंड वॉल्केनो कहते किससे हैं बता देता हूँ कि एक्टिव वॉल्केनो वो होते हैं जहाँ की हर कुछ समय के इंटरवल में पेरियोडिकली वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं। उन्हें एक्टिव वॉल्केनोज के नाम से जाना जाता है। सो एंड सेकंड होता है जो कि डोरमेंट एंड थर्ड होता है डेड वॉल्केनोज। तो डोरमेंट के अंदर एक पहले वहाँ पे इरप्शंस होते थे, वॉल्केनिक इरप्शंस, लेकिन अभी कुछ समय से नहीं हुए हैं। साल 2 साल 5 साल 10 साल से वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस नहीं हो रहे हैं। लेकिन कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आने वाले 10 साल के बाद 20 साल के बाद में वहाँ पे अगर इरप्शंस होगा या नहीं होगा। बाय चांस हो सकता है,
अभी तक इसकी कोई श्योरिटी नहीं लेता है, उससे हम डोरमेंट के नाम से जानते हैं। और डेड वॉल्केनो जो वो होते हैं जहाँ की हज़ारों सालों पहले कभी वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ था, लेकिन उसके बाद में अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है कि वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ हो। और वो लैंड पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, उसका कंपोजिशन पूरी तरह से चेंज हो चुका है, उससे हम डेड वॉल्केनिक इरप्शंस के नाम से जानते हैं। सो एक्टिव वॉल्केनो हमारे इंडिया के अंदर ओनली जो एक्टिव वॉल्केनो हैं वह बैरन आइलैंड्स में हैं। बैरन है जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर्कपेलागो में पाया जाता है। एंड नारकोंडम विच इज़ वेरी नियर टू इट्स इज ए डोरमेंट वॉल्केनोस। अभी हमने डोरमेंट वॉल्केनोस के बारे में भी बात की। सो नारकोंडम एक हमारा जो कि डोरमेंट वॉल्केनोस बनने की कगार पे हैं। तो चलिए, थैंक यू फॉर दिस। एंड now in our next video we discussed the rock and the soil and different types of soils in our India.